Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the Ostwald Dilution Law, which was proposed by Ostwald in 1888. This law states that the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of the concentration of the solution and directly proportional to the square root of the dilution. Degree of dissociations, that is the ratio of the molecules of electrolyte dissociated to the total number of molecules of electrolyte. तो ये degree of dissociation ये inversely proportional है to the square root of the concentrations. और degree of dissociation it is directly proportional to square root of the volume of dilutions or simply dilutions. This law provides a relationship between dissociation constant, that is Kd, and the degree of dissociation, that is alpha, for weak electrolytes. As we discussed, we have studied in Arrhenius theory of electrolytic dissociations that there is a dynamic equilibrium between ions and undissociated molecules. यानी Arrhenius theory का एक पॉइंट ये था कि weak electrolytes वो partially dissociated होते हैं और dissociated और undissociated इलेक्ट्रोलाइट्स में एक इक्विलिब्रियम है. तो जब इक्विलिब्रियम है तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन इस इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं. सो लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम मैनर एज अप्लाइड इन द केमिकल इक्विलिब्रियम. इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, इसी तरह इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में जो इक्विलिब्रियम है इसको भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं. तो पहली दफ़ा ऑस्टवर्ल्ड ने इस इक्विलिब्रियम को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया और उसने एक इक्वेशन डिराइव किया, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ. हेंस द ऑस्टवर्ल्ड अटेम्प्टेड टू अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू इक्विलिब्रियम that exist between the ions and undissociated electrolyte molecules. And by application of the law of mass action, he obtained an equation that is called Ostwald Dilution Law. तो कैसे अप्लाई करते हैं? Let us consider an electrolyte AB, and this is weak electrolyte. So it is partially dissociated into ions, positive ions and negative ions. So consider an electrolyte AB which dissociates into positive and negative ions in the aqueous solutions. तो ये इसका equilibrium होगा. Undissociated electrolyte और dissociated electrolyte, positive and negative ions, there is an equilibrium. तो अब इस equilibrium को हम law of mass action apply करते हैं. Law of mass action क्या है? According to law of mass action, the rate of reaction is proportional to the product of the active concentration of the reactants. तो अब इसमें फॉरवर्ड के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो रिएक्शन तो इसमें एक ही है, ए बी. हेंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए बी. आर एफ इज द रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वलिटी से रिप्लेस करते हैं, के एफ, where Kf is the rate constant, then we have rate is equal to Kf or AB. ये forward reaction के लिए हो जाएगा. Similarly for backward reactions ये अब backward reaction में A और B reaction हो जाएंगे, ये product हो जाएगा. So rate is direct proportional to the concentration of the reactants A and B. Rate of backward reactions, that is proportional to concentration of the positive ion and negative ions. RB is the rate for the backward reactions. Proportionality constants यूज़ करते हैं, यानी proportionality को replace करते हैं constants equality के से. तो इसमें proportionality constant KB, RB is equal to KB A and B, where KB is the rate constant for backward reactions. अब equilibrium पर forward reactions and rate of forward reactions and rate of reverse reactions are equal. Rate of forward reaction RF is equal to rate of backward reaction RB. तो RF की वैल्यूज़ और RB की वैल्यूज़ लगा लेते हैं, दैट इज़ KF AB और KB A और B.
इसको रीअरेंज करते हैं, यानी इस ए बी को इस साइड पर लेते हैं और के बी को इस साइड पर लेते हैं, तो के बाई के बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी। अब ये रेशो है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं के डी, एंड दिस के डी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। अब इन को फर्दर रीअरेंज करते हैं। लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा एंड concentration of electrolyte will be is equal to C। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और कंसंट्रेशन C है तो अनडिसोसिएटेड डिग्री ऑफ अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या हो जाएगा, इधर अगर ये भी लिखते हैं अनडिसोसिएटेड it will be equal to 1 minus alpha। ये होगा fraction of the undissociated, यानी fraction of the dissociated electrolyte is alpha। degree of dissociation या इसको fraction भी कह सकते हैं ना, fraction of the dissociated molecule is alpha, तो undissociated कितना रह जाएगा 1 minus alpha। और लेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्स पर लीटर इन मोलरिटी इज इक्वल टू C। तो अब यहाँ पर ये ए पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा। इस तरह B किसके बराबर हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा, और ए बी किसके बराबर हो जाएंगे C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ये कैसे होंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 500 है, 500 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मालिक्यूल्स इज़ 500 एंड दिस 500 इज़ C। इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा C। फ्रैक्शन ऑफ द मालिक्यूल डिसोसिएटेड 25% और फ्रैक्शन हो जाएगा 0.25, यानी 1 में से 0.25 डिसोसिएटेड है, तो इस टर्म में ये हो जाएगा अल्फ़ा। और अनडिसोसिएटेड कितने रह जाएंगे, 25% डिसोसिएटेड है तो अनडिसोसिएटेड कितने हो जाएंगे 75% और 0.75। फ्रैक्शन ऑफ द अनडिसोसिएटेड वो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 माइनस 0.25 0.25 डिसोसिएटेड है तो अनडिसोसिएटेड कितने रह जाएंगे 1 माइनस 0.25। या दूसरे अल्फाज में 75% डिसोसिएटेड है, 25% डिसोसिएटेड है तो अनडिसोसिएटेड कितने रह जाएंगे 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो लेट दिस इज 1 माइनस अल्फा। अब अगर टोटल नंबर 500 है और इसमें से 25% डिसोसिएटेड है तो डिसोसिएटेड की कंसंट्रेशन क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, यानी 100 में से 25 है तो 500 में से क्या हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 500 ये कर लेंगे। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, ये 25 डिवाइड बाई 100 या 0.25 इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये 0.25 ये क्या है, ये अल्फ़ा है और 500 क्या है, ये C है। सो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा C। 125 हो जाएंगे तो अल्फ़ा C। तो इसलिए हम यहाँ पर ये इस A प्लस के लिए हम लिखते हैं C अल्फ़ा, यानी ये C हो जाएगा इस केस में 500 और ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा 25%। इसी तरह B के लिए भी है, B की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये भी इसी तरह C अल्फ़ा हो जाएगा। और अनडिसोसिएटेड नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड वो क्या हो जाएगा कि अनडिसोसिएटेड वो है 0.75 या 75%, यानी 100 में से 75 है तो 500 में से क्या हो जाएगा, या फ्रैक्शन इसका 75 है 0.75 है और ये कंट्रोल कंसंट्रेशन है, तो ये 0.75 ये है 1 माइनस अल्फ़ा और 500 C है। तो अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अब इस इक्वेशन में
इस ए बी और ए बी को रिप्लेस करते हैं सी अल्फ़ा एंड सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा सी. सो वी गेट दिस इक्वेशन. अब इसको फर्दर रिअरेंज करते हैं, यानी इनमें से एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक सी अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक फॉर्म है ना. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ वेरी स्मॉल. तो जब स्मॉल है तो ये अल्फ़ा, दिस इन डिनोमिनेटर में ये अल्फ़ा, दिस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1. सो देयरफॉर इट कैन बी इग्नोर्ड. दिस अल्फ़ा को इग्नोर कर लेते हैं. सो वी हैव के डी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई 1. अब इससे अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं. तो जब अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे तो ये सी इस साइड पर आ जाएगा. अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के डी बाई सी स्क्वायर. के डी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. अगर उसको हम रिमूव कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज डायरेक्टली टू 1 ओवर सी और अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर सी अंडर रूट. और यही है, दैट इज़ दी, ये भी ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एक फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. तो इस इक्वेशन के मुताबिक द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. इसी तरह हम इसको फर्दर भी रिअरेंज कर सकते हैं. सी को रिप्लेस करते हैं बाय वॉल्यूम. सो इफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन V लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस, तो फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर V. अब इस C को इस रिप्लेस करते हैं बाय 1 ओवर V, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन दिस इक्वेशंस. सो वी गेट डिग्री अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर और सी अंडर रूट है वो 1 ओवर वी हो जाएगा. इसको फर्दर अरेंज करते हैं तो ये भी ऊपर हो जाएगा. तो वी गेट दिस इक्वेशंस. तो ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, and that is the statement of Ostwald dilution law.